Hey, what's up everyone? Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Tuesday, 24th of Feb, and today was Nifty's monthly expiry. And of course, the monthly expiry didn't disappoint us at all. It was quite a volatile expiry with a day's range of more than 300 plus points. Today's Nifty expiry was pretty similar to the previous Sensex expiry because दोनों दिन हमको एक clean trending day देखने को मिला. Generally क्या होता है expiry के दिन when the markets hit the support levels वहाँ पे एक mean reversion आ जाता है especially with a lot of vigor. But last दोनों expiry both Sensex expiry and today's Nifty monthly expiry the markets kept breaking all the supports during an intraday especially on an expiry which is kind of surprising. The only difference between the previous Sensex expiry and today's Nifty expiry was the post 2 p.m. price action. Post 2 p.m. Sensex continued to tank, but today there was a bit of recovery. Nifty today even broke the local minima and at one point we were trading at 25,300 levels and वहाँ से 150 points का एक recovery देखने को मिली and post 2 p.m. the gamma was quite rampant. And even today Nifty IT continues to be the dragger and Nifty IT closed almost 5% in red and looks like there has been a lot of pessimism around Nifty IT owing to the AI-led disruptions. And India VIX continues to stay strong at around 14 levels and long-term option का जो premiums है वो ज़्यादा गिर नहीं रहा. The situation looks a little dicey for the bulls because अगर हम 25,000 के नीचे अब trade करना चालू कर देंगे तो then we might be looking at further downside on Nifty. So let's get to the terminal and let's see कल के Sensex 1DT के लिए कैसे ट्रेड करना है because Thursday Sensex monthly expiry है and I am expecting the volatility to stay here for some more time. So first of all, apologies for not posting yesterday's video because I was on the move and I thought I'd be making it on time but थोड़ा बहुत delay हो गया so I could not make the video, so apologies for that. अगर daily chart की बात करें, you can notice that the markets are being thrown around by all the global news. किसी दिन सुप्रीम कोर्ट का ट्रम्प के अगेंस्ट जो रूलिंग आती है उसका न्यूज़ आ जाता है एंड उसके बाद ट्रम्प ने ट्वीट करता है कि लाइक आई एम यूजिंग माय प्रेसिडेंशियल पावर्स टू इम्पोज फलाना ढिमकाना टैरिफ्स एंड देन किसी दिन ट्रेड डील का न्यूज़ आ जाता है एंड किसी दिन एआई लेड डेवलपमेंट का न्यूज़ आ जाता है एंड दैट न्यूज़ ऑफ कोर्स एट दिस पॉइंट द इम्प्लीकेशन ऑफ दोज पर्टिकुलर एआई लेड डिसरप्शन का न्यूज़ इज ओनली ऑन अ पर्टिकुलर सेक्टर बट आगे जाके इट विल हैव अ ब्रॉडर मार्केट इम्पैक्ट इन माई ओपिनियन. सो एट दिस पॉइंट देयर इज no particular importance of positional price action but rather हमको सिर्फ intraday पे ही focus करना पड़ेगा because one cannot expect what is going to happen tomorrow because आज रात हमारे जब markets close होते हैं and US markets open होते हैं कुछ भी हो सकता है, कोई भी news आ सकता है तो it is in your better interest or in our better interest to not take a lot of positional exposure at least for some more time today. So intraday पे you can notice that today was yet another downtrending day and मैं इंट्रो वीडियो में भी यही कह रहा था कि जनरली स्पीकिंग एक्सपायरी डे के दिन मार्केट्स वोलेटाइल होते हैं एंड मीन रिवर्टिंग होते हैं बिकॉज जब भी मार्केट्स सपोर्ट्स को हिट करता है तो वहां से एक शार्प बाउंस आ जाता है बिकॉज इन सपोर्ट्स के आसपास देयर वुड बी अ लॉट ऑफ सप्लाई. But over the last couple of weeks, even on this Sensex expiry and even today, there was a clean downtrending kind of a day and those downtrending days are also not in no man's land. मतलब कोई भी एक सपोर्ट ब्रीच हो गया है एंड उसके बाद कोई सपोर्ट दूर दूर तक नहीं है एंड मार्केट्स ने कंटिन्यूसली उस गैप को फिल करने खाली ग्राउंड में मतलब मूव कर रहा है, ऐसा भी नहीं है. द मार्केट्स हैड अ लॉट ऑफ सपोर्ट्स, यहाँ पे भी सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था एंड इवन दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड इस सपोर्ट को तो मैं मानता था कि आज का लोकल मिनिमा है बट एट वन पॉइंट इवन दिस सपोर्ट वॉज टेकन डाउन विथ अ लॉट ऑफ इंटेंसिटी. यहाँ पे काफी ज्यादा वॉल्यूम्स एक्सचेंज हुए हैं बट ऑफ कोर्स फ्रॉम हाइंडसाइट इट माइट लुक लाइक अ फेक ब्रेकडाउन बट व्हेन इट वाज हैपनिंग इन रियल टाइम इट डिड लुक लाइक द मार्केट्स हैव रीच्ड द सपोर्ट एंड द मार्केट्स वुड बी टेकिंग अनदर 100 पॉइंट्स का सेल ऑफ. बट अगेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे वी सॉ सम अमाउंट ऑफ रिकवरी. टू टॉक अबाउट निफ्टीज प्रीमियम्स वी एक्चुअली ओपनड एट डिसेंट प्रीमियम्स ऑलमोस्ट 140 रुपीज पे स्ट्रैडल खुले थे विच वॉज नॉट एट ऑल बैड बट एट द सेम टाइम 140 रुपीज के स्ट्रैडल पे मार्केट्स ने ऑलमोस्ट 300 पॉइंट नीचे एंड 150 पॉइंट्स ऊपर almost 450-500 points का एक मूव दे ही दिया था. So unless you got your directions right, even with a lot of premium to actually capture, one would not have made any money today. Fortunately, I was on the right side of the volatility. So fortunately, I closed somewhere around
4% in green today. But again, it was not at all an easy day, especially post 130, because 130 के बाद यहाँ पे the straddle was trading somewhere around 65 points or 70 points, and 65 rupees के straddle पे markets ने 150 points ऊपर, 80 points नीचे और again 80 points ऊपर मार दिया था, and post 2 PM gamma was quite rampant. तो there was a brief period of time today, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत market sideways चला गया था, and this is where one got a decent amount of crush as well. So अगर स्ट्रैडल की बात करें, आई थिंक आई ऑलरेडी स्पोकन अबाउट द स्ट्रैडल. 140 रुपीज पे ओपन हुआ. देयर वाज नो स्पाइक एज सच, बट स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत वैल्यू होल्ड कर रहा था, बिकॉज 120 पे जो लो मारा, उस लो को वापस टेकआउट होने में ऑलमोस्ट 45-50 मिनट्स लगा. एंड व्हेन स्पेशली बिटवीन 11:30 to 1 o'clock, when the markets were stuck in a small range, there was a decent amount of crush. But looking at how the price action was in the first 40-45 minutes, one would not commit too much of a size for that particular range, because markets काफी volatile हो सकते थे, especially on the monthly expiry. So yeah, अगर open interest की बात करें, कल सेंसेक्स है, तो you can notice that a lot of calls have been written, and at the same time 81,000 पे ज्यादातर puts build हो चुके हैं. But again, some people might be expecting some amount of bottoming at 82,000 levels, तो almost 1,000 points दूर का puts जो है यहाँ पे. But at the same time 82,000 पे थोड़ा बहुत straddles right हो चुके हैं. You can notice that calls are not aggressively pushed lower. तो अगर ऐसे सिचुएशन पे, ऐसे डाउन ट्रेंडिंग डेज में जनरली एट द मनी पे ज्यादातर कॉल्स आ जाता है, बट यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि कॉल राइटर्स आर स्टिल एट 82,500 लेवल्स टुडे. तो ये जो ट्रैपिंग जो हुई है यहाँ पे, जो मैं कह रहा था कि जो एक्सपायरी का जो लोकल मिनिमा जो था, वो जो ब्रीच हो गया था यहाँ पे, दिस लोकल मिनिमा समवेयर अराउंड हियर, जो ब्रीच होके वापस जो आया है, तो इफ वन वर टू बिलीव द ओपन इंटरेस्ट, सो दिस शुड बी सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रैपिंग फॉर पोजिशनल. तो जब तक ये लो ब्रीच नहीं होता है, देन द मार्केट्स शुड बी स्पाइकिंग ऑन द अपसाइड एंड नॉट ऑन द डाउन साइड. सो दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग फॉर, एंड यहाँ पे रिवर्सल के लिए काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी बन जाता है. सो कल के अगर प्राइस एक्शन ट्रेड्स की बात करें, तो यस, वी कैन हैव सम सॉर्ट ऑफ अ मीन रिवर्शन ट्रेड्स, स्पेशली इफ द मार्केट कम्स हियर. 82,000 लेवल्स पे एक राउंड नंबर लेवल भी हो जाता है, एंड मंथली एक्सपायरी के आसपास मार्केट्स को एक अच्छा एंकर पॉइंट भी मिल जाता है. एंड अगर मार्केट यहाँ पे एक थोड़ा गैप अप खुल के मार्केट्स नीचे आता है, तो 82,000 लेवल्स पे हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके, एक रिवर्सल पैटर्न्स को यूज करके हम लोग थोड़ा मीन रिवर्शन ट्रेड्स हम प्लान कर सकते हैं. बट अगेन यहाँ पे स्टॉप लॉसेस छोटा होना चाहिए, एंड डोंट सिट इन होप कि मार्केट यहाँ पे तोड़ने के बाद भी मार्केट्स ऊपर आएगा करके, एंड डोंट एक्सपेक्ट दैट यहाँ पे हम लोग ट्रैप होते हैं. तो अगर मार्केट आपका स्टॉप लॉस खा जाता है, तो देन डोंट एक्सपेक्ट दैट ओ आई विल नॉट गिव माय स्टॉप लॉस, बिकॉज कल भी मार्केट्स ने यहाँ पे थोड़ा बेयर्स को ट्रैप किए थे, ब्रेकआउट देके ट्रैप की करके रिवर्सल किया था. बट ऐसे गलत फहमी में या होप में मत बैठो, विशफुल थिंकिंग में मत बैठो. अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो आप स्टॉप लॉस ले लो, वापस दूसरी बार री एंट्री ले सकते हैं, बट अगेन उसके लिए आपका साइज थोड़ा छोटा होना चाहिए. तो अगेन till this volatility kind of subsides, I would recommend you to trade with only 20 to 25% of the size, because markets में इतनी ज्यादा volatility है, 20-25% size पे ही आपका जितना आपका monthly expectation है उतना most probably बन जाना चाहिए. अगर मार्केट एक बड़ा गैप अप खुल के, तो अगर ये लेवल को तोड़ता है, अगर इस लेवल को तोड़ता है स्पेशली बिफोर 10 o'clock, तो देन वी शुड बी गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, एंड हमारा जो प्रॉफिट बुकिंग या यहाँ पे अगर मीन रिवर्शन ट्रेड्स भी लेना है, तो इट इज समवेयर अराउंड 83,100 लेवल. अगर 83,000 लेवल पे भी आप अगर प्रॉफिट बुक करना है, तो बुक कर सकते हैं, एंड 83,000 लेवल्स पे आप एक मीन रिवर्शन ट्रेड भी आप ले सकते हैं. बट आपका जो स्टॉप लॉस बनता है वो थोड़ा ज्यादा बनता है, 200 पॉइंट्स के आसपास आपका स्टॉप लॉस बनता है सेंसेक्स पे. तो इफ यू आर ओके गिविंग दिस काइंड ऑफ अ स्टॉप लॉस, देन इनिशिएट अ शॉर्ट ट्रेड अराउंड 83,000 लेवल्स, अगर मार्केट यहाँ पे आता है. तो अगर मार्केट एक बड़ा गैप अप खुल जाता है, लेट्स से बिकॉज currently the markets are gapping wide on both the sides, तो अगर मार्केट 82,800 के आसपास अगर मार्केट खुल जाता है, तो देन वेट फॉर द मार्केट्स टू एक्चुअली हिट 83,200 और 83,300 लेवल्स. एग्जैक्टली 83,000 लेवल पे आप शॉर्ट पोजीशंस मत लो, बिकॉज इंट्राडे प्लेयर्स के लिए यहाँ पे बिल्कुल आपका खाने के लिए कुछ मिला नहीं रहेगा. तो पीपल वुड बी वेटिंग फॉर एटलीस्ट 300, 400, 500 पॉइंट्स. अगर हमारा शॉर्ट ट्रेड लेना है बड़े गैप अप के दिन पे, तो देन वी शुड बी वेटिंग फॉर 83,250 लेवल्स. तो 83,250 लेवल्स पे हम लोगों को शॉर्ट ट्रेड प्लान करनी चाहिए, नॉट एट 83,000 लेवल्स. बट अगर मार्केट थोड़ा ही गैप अप खुल के, देन मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकआउट करके इंट्राडे में अगर ट्रैवल करके मार्केट 83,000 लेवल्स के आसपास आता है, तो देन यहाँ पे हो सकता है कि जो लोग यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किए होंगे, तो उनका ऑलरेडी पेट भरा होगा, एंड यहाँ पे वो लोग अपना
लॉन्ग पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे एंड एट द सेम टाइम देयर विल बी अ लॉट ऑफ शॉट्स ट्राइंग टू कम एंड फेड दिस मूव बिकॉज आज का जो हाई है एंड यहाँ पे स्विंग भी है एंड यहाँ पे मल्टीपल टच पॉइंट्स भी है विच वुड डेफिनेटली ऑफर अस अ गुड रिस्क रिवॉर्ड प्रोपोजिशन टू शॉर्ट एट 83,000 लेवल्स. अपार्ट फ्रॉम दैट कल मैं स्टॉप एंड रिवर्स वाला ट्रेड में प्लान नहीं करूंगा. अगर मार्केट कंटिन्यू जाता है नीचे देन लेट इट गो. आई विल नॉट बी वेरी ईगर टू कैच दैट पर्टिकुलर डाउन मूव बिकॉज मार्केट्स ने ट्रेंड फॉलोअर्स को कंटिन्यूसली 2 दिन पैसे दे दिया है. लाइक ऑलमोस्ट लास्ट 4 दिन में 2 दिन काफ़ी अच्छा बड़ा पैसा दिया है ट्रेंड फॉलोअर्स को, स्पेशली ऑन द पुट साइड. तो मैं कल इतना ज़्यादा डाउन साइड एक्सपेक्ट नहीं करूंगा. अगर न्यूज़ बेस्ड अगर मार्केट्स में कुछ न्यूज़ आता है, अगर न्यूज़ बेस्ड प्राइस एक्शन डेवलप होता है एंड मार्केट्स नीचे जाता है, मैं जाने दूंगा मार्केट्स को. इट्स नॉट इन माई प्लान ऑफ एक्शन टू एक्चुअली कैप्चर द डाउनवर्ड ट्रेंड टुमारो. ऑलराइट, मैं कल के लिए दोनों तरफ एक यहाँ पे एक मीन रिवर्शन ट्रेड प्लान करने वाला हूं एंड यहाँ पे एक मीन रिवर्शन ट्रेड प्लान करने वाला हूं. एंड अगर मार्केट्स इस रेंज के बीच अगर ओपन होके एंड अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो देन आई वुड ऑल्सो वांट टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्रेकआउट टू कैप्चर दिस मीट ऑफ द मूव. यहाँ पे जो मीट हमको मिलने वाला है समवेयर अराउंड 400 पॉइंट्स का मिलने वाला है. तो अगर आपका स्टॉप लॉस 100 to 150 पॉइंट्स भी होगा तो देन दैट रिस्क इज एक्चुअली worth it. All right, so apart from that अगर straddles की बात करना है तो I think we have a decent amount of straddles here. तो आप देख सकते हैं कि like one of the highest straddles for 1DT, I mean Sensex का भी monthly expiry है तो Sensex also will be quite volatile over the next couple of days. But again 770 रुपीज का जो straddle है, but अगर आपका डे का रेंज अगर आप देखते हैं तो मार्केट्स कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स के बीच मूव कर रहा है. यहाँ पे आज भी Sensex 83,000 कि प्लस के लेवल से लेके ऑलमोस्ट 82,000 लेवल्स को ब्रीच करके 81,900 के आसपास आया था. तो ऑलमोस्ट 1,100 पॉइंट्स इंट्राडे रेंज. यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट का इंट्राडे रेंज एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट का इंट्राडे रेंज. सो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि वो 700 इज मच हायर देन व्हाट वी हैव गॉट over the last couple of weeks. Previous weeks के हिसाब से 700 काफी अच्छा है, but realized volatility is almost always in line with the implied volatility, if not more. Realized volatility अगर मार्केट का रेंज 700 पॉइंट्स के अंदर भी रहेगा तो देन मार्केट्स ने आपको छोटा रेंज में 500 पॉइंट के रेंज में आप मल्टीपल टाइम आपको चॉप करेगा. एंड व्हेन यू आर गेटिंग चॉप लेफ्ट राइट एंड सेंटर आफ्टर डेल्टा एडजस्टमेंट कॉस्ट आपको शॉर्ट वॉल ट्रेड में कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं. इवन व्हेन आई हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ 750 पॉइंट्स का स्ट्रैडल, आई वुड नॉट ट्राई टू शॉर्ट the walls. I would not try to go for delta neutral trades, but I'd rather wait for the markets to come to my levels and वहां से मैं प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड्स ही अभी प्रेफर करने वाला हूँ. ऑलराइट, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स आज का एक्सपायरी आपका कैसा रहा एंड आई विल सी यू अगेन आफ्टर टुमारोज मार्केट एक्शन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.